Jai Hind, dear students of Geography Optional Class 11th. Today we will discuss Lesson 2 in Practical Work of Geography Part 1, Lesson 2 or Chapter 2, heading or title is the Map Scale. Okay, I am trying to show how much we have to write on rule sheet and what diagram we need to draw and how we can complete the practical record book or file. Now see, this is the Chapter 2 Map Scale. Very first we have to write about the glossary. Only three: denominator, numerator, representative fraction are given. The question arises here, what is a scale? Here you must know that a bar indicating or you have seen that a map with a scale bar indicating equal divisions each marked with reading in kilometer or miles होता है ना मैप पे स्केल जो बनाए रहते हैं and these divisions are used to find out the ground distance on the map. In other words, a map scale provides the relationship between the map and the whole or part of the or surface shown on it. We can also express this relationship as the ratio of distances between the 2 points on the map and the corresponding distance between the same 2 points on the ground. तो आपको लिखना है यहाँ से, इन अदर वर्ड्स आप छोड़ दीजिएगा, यहाँ से अब मैप से लेके लास्ट तक ये लिख दीजिएगा व्हाट इज ए स्केल में. It is just outline. Now we'll see that how much type of scales are there. There are at least three ways in which the relationship can be expressed. तीन तरह से हम इस रिलेशनशिप को ग्राउंड डिस्टेंस और मैप डिस्टेंस को दिखा सकते हैं. तो तीन तरह से स्केल बनाते हैं. पहला है स्टेटमेंट ऑफ स्केल, दूसरा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जिसको आरएफ बोलते हैं, और तीसरा है ग्राफिकल स्केल, इसको बार स्केल भी बोलते हैं. तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको लिखना है टू ग्राफिकल बार स्केल, ये लिख दोगे rule sheet पे. Then you have to write about the methods of scale. Before that, as well, we are going to discussing, but one box information is also given here. It is actually the system of measurements. First system is known as metric system of measurement, commonly used in India. You can see 1 kilometer equal to 1000 meter, 1 meter equal to 100 centimeters, and 1 centimeter is equal to 10 millimeters. और एक पहले सिस्टम चलता था जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. 1 माइल में 8 फरलॉन्ग होता है. 1 फरलॉन्ग इक्वल टू 220 यार्ड. 1 यार्ड मीन्स 3 फीट एंड 1 फुट. जब एक से ज्यादा है तो फीट बोलते हैं, और एक बोलते हैं तो 1 फुट बोलते हैं. इसमें 12 इंच. आप अपना स्केल यूज करते हो, यहाँ से देखना एक साइड में सेंटीमीटर वाला मेजरमेंट रहता है और दूसरे साइड में इंच वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. ओके, so first I am going to discuss about the statement of scale. A scale of a map may be indicated in the form of written statement. For example, if on the map written statement appears stating 1 centimeter represents 10 kilometer, it means that on that map particularly, a distance of 1 centimeter is representing 10 kilometer of the corresponding ground distance. इसमें आप यहाँ से लेके ग्राउंड डिस्टेंस तक लिख दीजिएगा. ओके, देन सेकेंड ग्राफिकल स्केल. ग्राफिकल स्केल देखो ध्यान से, ये बनाया गया है, ये है, बहुत सारे मैप में आपको मिलता है. द सेकेंड टाइप ऑफ स्केल shows map distances and corresponding ground distances using the line bar with primary and secondary divisions marked on it. It is referred to as a graphical scale or bar scale. तो यहाँ तक आपको लिखना है इसके बारे में, इंट्रोडक्टरी, और फिर ये वाला फिगर आपको बनाना है, दिस फिगर. ओके, इस फिगर में ध्यान से देखो, एक लाइन है, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 एंड 5, और जो पहला डिवीजन है उस पर लिख दिया 0. 0 के बाद जब डिस्टेंस आया 1000 मीटर का तो लिख दिया 1, फिर 2000 पे 2, 3000 पे 3, 4000 पे 4, यानी 4 किलोमीटर, और लेफ्ट साइड को डिवाइड कर दिया 10 पार्ट में. एक एक डिवीजन शो करेगा 100 मीटर, यानी पांचवें डिवीजन को लिखते हैं सिंपली. पांचवें डिवीजन पे हो गया 500 और लास्ट 10 डिवीजन पे हो गया 1000 मीटर. यानी लेफ्ट साइड में मीटर शो कर रहा है एक डिवीजन 100 मीटर को, और राइट हैंड साइड एक डिवीजन शो कर रहा है 1 किलोमीटर को.
ओके, थर्ड स्केल बनाने का तरीका है, द थर्ड टाइप, इट इज कॉल्ड आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। सो हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं आरएफ। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द मैप डिस्टेंस एंड द करस्पॉन्डिंग ground distance in units of length. The use of units to express the scale makes is the most versatile method. सबसे अधिक इस्तेमाल होता है। RF is generally shown in fraction because it shows how much the real world is reduced to fit on the map. For example, as a fraction, 1:24,000 shows that 1 unit of length on the map represents 24,000 on the same unit on the ground. इसको आप यहाँ से लेके on the ground तक लिखते हैं। ओके, रूल शीट में इसका सीधे हम लोग कन्वर्जन ऑफ स्केल यहां से आ जाते हैं। स्केल कितने तरह से बनता है? 3 तरह से। पहला है डिस्कस हम लोगों ने किया था स्टेटमेंट ऑफ स्केल, दूसरा हम लोगों ने किया था ग्राफिकल और बार स्केल, और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो जो पहला प्रॉब्लम है इसको ध्यान से देखो, स्टेटमेंट ऑफ स्केल इनटू आरएफ। स्टेटमेंट दिया, कन्वर्ट द गिवन स्टेटमेंट ऑफ स्केल 1 इंच रिप्रेजेंट्स 4 माइल्स इनटू आरएफ, यानी 1 इंच 4 माइल्स दिखा रहा है, इसको आरएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 इंच रिप्रेजेंट्स 4 माइल्स, और 1 माइल में कितना इंचेज होता है? वेरी सिंपल, 63,360 इंचेज होता है 1 माइल में। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 इंच शो कर रहा है 4 माइल को, the 4 miles you can say 1 inch is showing, so you will have to multiply 4 into 63,360, क्योंकि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर, इंच, 1 इंच जो कि मैप पे है 1 इंच, वो कितना दिखा रहा है? 4 माइल, 4 माइल 1 इंच में, और 1 माइल में कितना इंच होता है? 63,360 इंचेस। सिंपली 1 इंच रिप्रेजेंट कितना कर रहा है? 4 मल्टीप्लाई बाई 63,360। सिंपल है। मैप पे 1 इंच कितना शो कर रहा है? 4 माइल्स। तो इसको जब हम आरएफ पे कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग को देखना पड़ेगा 1 इंच से कितना यूनिट ग्राउंड का शो हो रहा है। तो 1 माइल में कितना इंच है? 63,360 इंच। सिंपली 4 माइल में कितना इंचेज हो जाएगा? यानी 1 इंच मैप पे शो कर रहा है 2,53,440 इंचेस ऑन द रियल ग्राउंड। क्लियर इट इज। सो वी कैन रिप्लेस द कैरेक्टर ऑफ इंचेज इनटू यूनिट्स। जहां हम लोग बोलते थे 1 इंच इक्वल टू 4 माइल्स, इसको हम लोग यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर दिए? जैसे 1 इंच शो कर रहा है 4 माइल, और 1 माइल में कितना है? 63,360 इंचेज। 4 इंटू 63,360 हो गया। इसको हम कर सकते हैं आरएफ में 1:2,53,440। सेकेंड, आरएफ इंटू स्टेटमेंट ऑफ स्केल, ये करना है आपको, कन्वर्ट आरएफ 1:2,53,040 इंटू स्टेटमेंट ऑफ स्केल इन मेट्रिक सिस्टम। यहाँ पे अब इंग्लिश सिस्टम में नहीं डालना है, मेट्रिक सिस्टम में डालना है। तो आरएफ क्या है? 1:2,53,440 कैन बी कन्वर्टेड इंटू स्टेटमेंट ऑफ स्केल। कैसे? 1:2,53,440 means 1 unit on the map represents 2,53,440 units on the ground. So 1 centimeter represents 2,53,440 divided by 1 lakh. 1 lakh क्यों? Because 1 kilometer equal to 1 lakh centimeter. इसको जब हम मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करते हैं जब हम, तो कितना आता है? 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 2.5344 किलोमीटर। लेकिन डेसिमल के बाद 2 यूनिट हम लोग इसको राउंड अप करेंगे। 2 जैसे पॉइंट के बाद 5344 है, तो सिंपली इसको हम लोग देंगे 2.53, आंसर हो जाएगा हम लोगों का किलोमीटर 2.53। इसके बाद देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफिकल और बार स्केल। प्रॉब्लम दिया है, कंस्ट्रक्ट ग्राफिकल स्केल फॉर अ मैप drawn on a scale of 1:50,000 and read the distances in kilometer and meter. By convention, a length of nearby 15 cm is taken. 15 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचते हैं ग्राफिकल स्केल बनाने के लिए, लेकिन इसके पहले कुछ कैलकुलेशंस भी हम लोग करते हैं टू गेट द लेंथ ऑफ लाइन फॉर ग्राफिकल स्केल। जैसे 1 यूनिट ऑन मैप showing 50,000 यूनिट ऑन द रियल ग्राउंड,
Simply the 1 unit of map represents 50,000 units on the ground. So 1 centimeter represents 50,000 centimeter. अगर 1 सेंटीमीटर मैप पे डिस्टेंस है तो ग्राउंड का रियल डिस्टेंस क्या है 50,000 सेंटीमीटर. फिर क्या करेंगे हम लोग 15 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट क्या कितना करेगा 50,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 1 लाख सिंपली 7.5 किलोमीटर यानी 1 सेंटीमीटर में आधा किलोमीटर दिखा रहा है तो 15 में हो गया 7.5 किलोमीटर. लेकिन 7.5 किलोमीटर इज नॉट अ राउट नंबर. तो राउंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे वी हैव टू चूज 5 और 10 किलोमीटर एज अ राउंड नंबर. इस केस में हम लोग 5 को राउंड नंबर कर रहे हैं. इसके लिए हम लोग कैसे बनाएंगे डिटरमिन द लेंथ ऑफ लाइन टू शो द 5 किलोमीटर फॉलोइंग कैलकुलेशंस टू बी कैरीड आउट. जैसे 7.5 किलोमीटर रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन ऑफ 15 सेंटीमीटर नो डाउट. तो 5 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने सेंटीमीटर की लाइन चाहिए 5 किलोमीटर will be represented by a line of 15 into 5 divided by 7.5. So 5 kilometer will be represented by a line of 10 centimeter. Clear? अब इसके बाद कंस्ट्रक्ट करते हैं ग्राफिकल स्केल. पहले क्या करेंगे draw a straight line of 10 centimeter and divide into 5 equal parts and assign the value of 1 kilometer each for 4 right side division and from the 0 mark also divide the extreme left side into 10 equal parts and mark each divisions by value of 100 meters. अब यहाँ देखो ये बना है फिगर आपको ड्रॉ करना होगा स्केल के हेल्प से. और जहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड किए और जो पहला आ रहा है फर्स्ट यहाँ पे 1 किलोमीटर नहीं लिखेंगे यहाँ 0 लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड इसका 10 डिवीजन दिखाना हम लोगों को. और 0 से पहला जो यूनिट आ रहा है इसको हम दिखा रहा है 1, दूसरा 2 किलोमीटर, तीसरे डिवीजन को 3 किलोमीटर और चौथे डिवीजन को 4 किलोमीटर. और एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में एक डिवीजन को 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है क्योंकि एक डिवीजन शो कर रहा है 100 मीटर. ओके नाउ द प्रॉब्लम 2. ये सब करना आपको डायग्राम बनाओगे व्हाइट शीट पे और 8-in-1 रोल शीट पे. कंस्ट्रक्ट अ ग्राफिकल स्केल where the given statement of scale is 1 inch represent 1 mile and read the distances in miles and furlong. अब इसमें बाई कन्वेंशन दिया हुआ है length of nearly 6 inches is taken to draw the graphical scale. To get the length of line for graphical scale, these steps may be followed. 1 inch represent 1 mile or simply 6 inches represents 6 miles. 6 inches represent 6 miles. तो कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऑफ 6 इंच 6 इंच लंबा लाइन खींच लेंगे और इसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे एंड असाइन अ वैल्यू ऑफ 1 माइल ईच फ्रॉम राइट साइड डिवीजन एंड आल्सो डिवाइड द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड इनटू 4 इक्वल पार्ट. क्योंकि माइल 8 फरलॉन्ग होती है, एक माइल में कितना फरलॉन्ग्स होता है 8. तो एक डिवीजन को हम लोग 2 फरलॉन्ग मान लेंगे तो 4 डिवीजन करेंगे एक्सट्रीम लेफ्ट. देखो यहाँ पे ये फिगर है 6 इंच की लाइन खींचे यहाँ पे यहाँ 0 मार्क नहीं करेंगे पर जहाँ 1 इंच कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे 0 मार्क कर दिए इधर 1 2 3 4 एंड 5 और दिस साइड 0 के लेफ्ट में जाओगे 1 इंच है इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना हमको और वहां लिख देना 2 4 6 8 फरलॉन्ग्स. क्लियर. प्रॉब्लम 3 दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट अ ग्राफिकल स्केल व्हेन द RF is 1 ratio 50,000 and read the distances in miles and furlong. To get the length of line for graphical scale क्या करना होगा as 1 unit represents 50,000 units या simply 1 inch represents 50,000 inches. So 6 inches represents 50,000 into 6 divided by 63,360 miles. क्योंकि एक माइल में कितना इंच होता है 63,360 inches. So 6 inch represents 4.73 miles. क्लियर. अब इसके लिए टू डिटरमिन द ऐसे हमको मालूम है 4.73 राउंड नंबर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे वी टेक एज द राउंड नंबर टू डिटरमिन द लेंथ ऑफ अ लाइन टू शो द 5 किलोमीटर द फॉलोइंग कैलकुलेशंस आर टू बी कैरीड आउट. 4.73 miles are represented by a line of 6 inches. So 5 miles will be represented by a line of 6 into 5 divided by 4.73. So 5 miles will be represented by a line of 6.34 inches.
अब हमको जो आंसर मिला है 6.34 इंचेस, इसकी लाइन खींचेंगे। कंस्ट्रक्ट करेंगे ग्राफिकल स्केल कैसे? To construct the graphical scale, to show 5 miles, we need to draw a line of 6.34 inches and divide it into 5 equal parts. लाइन तो 6 इंच की होती तो 6 पार्ट अगर कर लेते आसानी से, 5 इंचेस की होती 5 पार्ट में कर लेते, लेकिन यह है 6.34 लाइन में पॉइंट में है। ये एक ऐसी लाइन नहीं है कि जिसको सीधे सीधे हम लोग डिवाइड कर पाए। द क्वेश्चन इज नाउ, how can unequal line of 6.34 inches be divided into 5 equal parts? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ड्रॉ करते हैं एक लाइन 6.3 इंच की लाइन ड्रॉ कर दिए। ड्रॉ लाइंस एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री और 45 डिग्री फ्रॉम, हम लोग अपने कंपास में 45 डिग्री एंगल का दूरी भर लेंगे और स्टार्ट एंड इंड नोट्स दोनों से, लाइन के दोनों छोर से, स्टार्ट और इंड खत्म जहां हो रही है इसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए अनइक्वल लाइन है, तो यहां से 40 डिग्री का एंगल बना देंगे और फिर एक यहाँ से 40 डिग्री का एंगल बना देंगे। अब इसको 1 इंच की दूरी भर के अपने कंपास में स्केल के हेल्प से 1 2 3 4 5 डिवीजन में काट दिए और इस वाले एंगल को भी 5 में काट दिए। पहले वाले का नाम दिया ए और दूसरे नीचे वाले को देते हैं A1 B1 C1 लाइक दैट, ABCDE और नीचे वाले को A1 B1 E1 लाइक दैट। इसमें करना क्या है, ड्रॉ अ डॉटेड लाइन टू ज्वाइन द डिविजन्स मार्क्ड ऑन द टू लाइंस, और दोनों ऊपर जैसे A और A1 उसको स्केल लगा के जोड़ देंगे, तो जो आपका अनइक्वल लाइन है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। डिवीजन के बाद मार्क द इंटरसेक्शंस ऑफ दीज लाइंस एज द प्राइमरी स्केल। प्राइमरी स्केल में भी इसका डिवीजन करना है 2 और यानी 4 डिवीजन। एक माइल में कितना फरलॉन्ग, 8, तो एक एक फरलॉन्ग का 8 डिवीजन हम लोग नहीं करके सीधे सीधे 4 डिवीजन करते हैं इक्वली। मेथड वही अप्लाई करेंगे एंगल बना के, और यहाँ पे देखो 2 4 6 8 फरलॉन्ग दिखा देंगे। इस तरह से आपका ग्राफिकल स्केल कंप्लीट होगा। इट इज difficult little bit because we are having a line which is unequal 6.34 inches, so it is divided by the method, geometrical method, by drawing the angles from both the end। आपको यूट्यूब वगैरह में भी इसके बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा प्रैक्टिकल वर्क का, वहां से भी देख के कर सकते हो। कोशिश करके अपना ये मैप पर कंप्लीट कर लीजिएगा प्रैक्टिकल फाइल में, जो भी ये स्केल बनाने को दिया है आपका 2 लेसन कंप्लीट हो जाएगा। It's all for the day. Thank you. Have a nice day.